Hello everyone. In this video, we will study about Mendel's law of inheritance. Inheritance is the process by which characters are transferred from parents to their progeny. Like elephant always gives birth to baby elephant only. Mango seed develops into mango plant only. They will not produce the offspring of any other species. It was mid-19th century when Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years and proposed the law of inheritance. Mendel selected 14 true breed pea plant. Like these were 14 true breeding pea plant. Round, wrinkled, they were in pair. Round, wrinkled, yellow, green, violet, white, full constricted, green, yellow, axial, terminal, tall and dwarf. And for one character, if the character is seed shape, that is one character seed shape. This character have two traits, round and wrinkled. Similarly, seed color have two traits, brown, yellow and green. So you know brown, yellow and green. Likewise, flower color has two traits, violet and white. And what is mean by true breed variety? True breed means if we cross round with round, then in next generation all round seed will form. And if we again cross the seed of first generation, then in next generation we will get the same kind of seed, that is round. And in all successive generation we will get round seed of pea plant. Similarly, if we cross tall with tall, then we will get all tall in all successive generation. If we cross dwarf with dwarf, then we will get dwarf plant in all successive generation. So Mendel selected tall and dwarf plant for his experiment. So first he made true breed, means he crossed again and again tall with tall, and in every generation he found tall plant. And he also crossed dwarf and dwarf, and in every successive generation he found dwarf and dwarf. This he do for making true breed or pure tall. So to study the inheritance, Mendel crossed tall with tall. No, Mendel crossed tall with dwarf. Mendel crossed tall with dwarf plant. Then in one generation, Mendel got all tall. But here, Mendel crossed tall with dwarf. Then Mendel ने ये सोचा कि यहाँ ड्वार्फ भी होना चाहिए था, यहाँ ड्वार्फ नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ हिडन था इस जनरेशन में, कुछ रिसेसिव था, रिसेसिव कंडीशन में था जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो उसने दोबारा इन्हीं टोल में से दो प्लांट लिए और उनको क्रॉस करा के देखा। उसने उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसको 3 टोल मिले और एक ड्वार्फ हुआ। एक ड्वार्फ यहाँ आ गया। ये जो F1 जनरेशन थी, इसको F1 जनरेशन का द कैरेक्टर विच वाज हिडन इन F1 जनरेशन रीअपीयर्ड अगेन in F2 generation. That dwarf character, it reappeared as such in F2 generation. तो मेंडल ने ये देखकर कि ये ड्वार्फ आया है, ये देखकर कहा कि कुछ इनहेरिट यहाँ हुआ था। तो जो इनहेरिट हुआ था उसने उसको नाम दिया फैक्टर का।
जिसको आज के प्रेजेंट टाइम में हम जीन्स बोलते हैं। तो उसने कहा कि फैक्टर जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और आज जो जीन्स है वो भी पेयर में एलील, एक जीन की दो एलील होती हैं, एंड एलील आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। Likewise, he was also saying so that factor exist in pair, or during the meiosis factor segregate। जैसे कैपिटल टी को हम टोल, प्योर टोल से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल टी को प्योर ड्वार्फ। ये मेल था, ये फीमेल था। ये जो एलील्स हैं दे विल सेग्रीगेट। मेंडल ने कहा था कि फैक्टर सेग्रीगेट करता है, फैक्टर पेयर में होते हैं, उनको सेग्रीगेट करेगा, सेपरेट होंगे। जो सेपरेट हो रहे हैं फैक्टर, उनको उसने मेंबर कहा था, जिनको हम एलील्स बोलते हैं। मेंडल ने उसे मेंबर कहा था, मेंबर ऑफ द स्टेट। ये स्मॉल टी। And in F1 generation, they form capital T small t in zygote. One allele come from male and one allele come from female. Small t, capital T small t, capital T small t. इसमें इसको सभी टोल आए, टोल। ऑल टोल इन F1 जनरेशन। तो उसने जैसे उसने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। F1 के पार्ट लिए और उसमें सैंपलिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी की सैंपलिंग करें। यहाँ पर उसको इसका परनेट स्क्वायर बनाकर भी हम प्रोजेनी को निकाल सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर एक रिसेसिव आया, और रेशियो जो आई वो 3 टोल थे और 1 ड्वार्फ, जो फिनोटिपिक रेशियो थी। इट वाज फिनोटिपिक रेशियो। जो ये एक ड्वार्फ आया, इस ड्वार्फ से को देखकर उसने कहा कि कुछ हिडन था। जो F1 जनरेशन थी उसमें कुछ हिडन था, दैट रीअपीयर अगेन एज सच इन F2 जनरेशन। ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर है दैट रीअपीयर अगेन इन F2 जनरेशन। उसने इस सब को देखकर उसने 2 लॉ दिए। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि गैमेट्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं। जैसे ये 2 एलील हैं, ये सेग्रीगेट हो रही हैं, यहाँ भी टोल में भी और ड्वार्फ में भी। और दे विल नॉट ब्लेंड, ये ब्लेंड, ये मिक्स नहीं होती। अगर ये मिक्स होती तो यहाँ पर ड्वार्फ कैसे आता? ये अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखती है। जैसे यहाँ ड्वार्फ स्मॉल टी आया, ये कैरेक्टर दोबारा रीअपीयर हो गया, इसका मतलब गैमेट सेग्रीगेट करते हैं और ये मिक्स नहीं होते। और उसने दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि यहाँ कुछ हिडन था और जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, इसलिए सभी टोल आए और स्मॉल टी रिसेसिव कंडीशन थी। तो
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ है तब भी ये डोमिनेंट है, लेकिन अगर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ है तो ये रिसेसिव ट्रेट है। ऐसे ही जो होमोजाइगस टोल है वो होमोजाइगस टोल डोमिनेंट है। कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट ही होगा। अगर कैपिटल टी के साथ है तब भी वो डोमिनेंट है, अगर कैपिटल स्मॉल टी के साथ है तब भी वो डोमिनेंट है। अगर रिसेसिव स्मॉल टी के साथ है तब ये रिसेसिव है, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन ये जब अपने पेयर के साथ होगा, पेयर में जब ये होगा तो ये एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये दिखाई देगा। ये हिडन जब होगा जब ये कैपिटल टी के साथ होगा। तो ये यहाँ ऐसे ही हो रहा था, ये कैपिटल टी के साथ जब ये स्मॉल टी था तो ये इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और ये स्मॉल टी था, ये रिसेसिव था, इसलिए यहाँ टोल आए, सभी ऑल टोल आए। और यहाँ 3:1 की रेशो जो फिनोटिपिक रेशो थी, जो दिख रहे थे, 3 टोल दिख रहे थे और एक ड्वार्फ दिख रहा था, 3:1 की रेशो में आए। तो ये थी फिनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो कैसे निकाली जाएगी? जीनोटिपिक रेशो जो है वो एलील्स की होती है कि जीनोटिपिक रेशो का मतलब है कि कितने हेट्रोजाइगस हैं, कितने होमोजाइगस हैं, और कितने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कितने होमोजाइगस डोमिनेंट है, और कितने होमोजाइगस रिसेसिव है। इनको देखकर निकाली जाती है जीनोटिपिक रेशो। तो इसमें ये रिसेसिव था, ये ड्वार्फ था, ड्वार्फ। इसका तो पता था ये ड्वार्फ है, लेकिन इन तीन में से कौन सा होमोजाइगस है और कौन सा हेट्रोजाइगस है ये निकालना था। तो जो रिसेसिव था ये, इसकी क्रॉस इनमें कराई गई। ये जो 3 के रेशो में प्लांट थे, इनकी क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराई गई। अगर ये कैपिटल टी था, अगर इन तीन में से एक कैपिटल था एक, तो इसकी क्रॉस इससे कराई गई। तो अगर फर्स्ट जनरेशन में सभी टोल आए, ऑल टोल आए, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था ये होमोजाइगस टोल था। जैसे यहाँ आ रहे हैं कैपिटल टी का स्मॉल टी में सभी टोल आ रहे हैं। अगर यहाँ सभी टोल आए तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो इस तरह से होमोजाइगस डोमिनेंट निकल गया। उस सेकेंड कंडीशन में स्मॉल टी का ये जो ड्वार्फ था स्मॉल टी इसका क्रॉस कराया, दूसरे के साथ कराया, मान लिया इसके साथ कराया, दूसरा प्लांट जो मिला वो हेट्रोजाइगस था। अगर वो हेट्रोजाइगस था तो उनकी जो रेशियो आएगी, ये हम पनेट स्क्वायर से करके देख लेते हैं ये क्या आता है। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आया 2 टोल आए,
हेट्रोजाइगस था, क्योंकि दो टोल आ रहे हैं, दो ड्वार्फ भी तो आ रहे हैं, दो ड्वार्फ आ रहे हैं, तो ये हेट्रोजाइगस था। अगर ये हेट्रोजाइगस टोल ना होता, ये होमोजाइगस टोल होता, जैसे ये होमोजाइगस टोल है, ये हेट्रोजाइगस टोल ना होकर ये होमोजाइगस टोल होता, तो सभी टोल आते, F1 जनरेशन में सभी टोल आते, लेकिन यहाँ पर दो टोल आ रहे थे, दो ड्वार्फ आ रहे थे। और एक बात और ये थी कि ये जीनोटिपिक रेशो थी 2:2, ये फिनोटिपिक रेशो भी ये थी और जीनोटिपिक रेशो भी ये थी। अगर हम देखे जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है, जीनोटिपिक रेशो भी दो है, और स्मॉल टी और दिखने में भी ये दो टोल दिख रहे थे, दो ड्वार्फ दिख रहे थे। और अगर इनके जीनोटाइप देखे जाए तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। जीनोटाइप भी इनके जीनोटिपिक रेशो भी पता चल रहा था 2:2 की। तो इससे प्रूफ उससे निकल गई, इनके ये जो तीन थे, इनमें कौन सा होमोजाइगस था, और कौन सा होमोजाइगस टोल था, और कौन सा हेट्रोजाइगस टोल था। इससे जब पता किया तो ये रेशो आई 1:2:1, मतलब जो एक था वो होमोजाइगस टोल था, ये जो दो थे ये हेट्रोजाइगस टोल थे, और इसका तो पता ही था, ये होमोजाइगस रिसेसिव